कहाँ से लाई हो जान मन ये किताब चेहरा गुलाबी आँखें। कहाँ से लाई हो जान मन ये किताब चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जान मन ये किताब चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जान मन। यही वो आँखें हैं जिनके मोती चमक रहे हैं समंदरों में। यही वो चेहरा है पूजते हैं। यही वो चेहरा है पूजते हैं जिसे पुजारी भी मंदिरों में। चमन में करती है रोज शबनम कली कली से तुम्हारी बातें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जान मन। नजर ये कहती है तुमसे मिलकर कभी न तुमसे नजर हटाऊं। तुम्हारी सूरत ही सामने हो। तुम्हारी सूरत ही सामने हो। तुम ही को बस देखता ही जाऊं। यूं ही गुजारूं मैं जिंदगी के तमाम दिन और तमाम रातें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जान मन ये किताब चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जान मन।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलराज, आपका दोस्त एंड द होस्ट ऑफ आवर फोर्थ एपिसोड दीवाना हुआ बादल. This is the final episode of our serial tribute to the legendary composer Shri O.P. Nayyar Saheb. Many people, excluding a few, find music having therapeutic qualities. इसीलिए एक उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कोलकाता के इस बेघर कलाकार का ये अजूबा देखिए. लॉकडाउन के दरमियान लेजेंडरी ओपी नैयर साहब की इस बेहतरीन धुन को किस जादुई अंदाज में अपनी वायलिन पर पेश किया है. ये साहब खुद को ही नहीं बल्कि हजारों संगीत प्रेमियों को खुशियां बांटते फिर रहे हैं. These days, the word fusion is being used so liberally that it's become almost meaningless. Long before it became a buzzword, composer O.P. Nayyar ji has smartly mixed Western instrumentation with Indian rhythms and created a fusion of his own in his songs. Those songs are as popular even today as they were when they were released. O.P. Nayyar साहब का संगीत आज भी उतना पॉपुलर है जितना उस जमाने में हुआ करता था. Interestingly, his repertoire also includes score of melodies from many B and C grade films which are remembered today only for his songs. बहुत से लोग उन्हें rebellious, arrogant, temperamental कहते थे. And yet, most admit even today that Nayyar Sahab was much ahead of his time and unique in his style of music making. बहुत से संगीतकारों ने उनके संगीत को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकामयाब रहे. संगीतकार अनिल बिस्वास जी के मुताबिक, at a time when most of the composers were copycats, Nayyar Sahab was an original, gutsy and irreverent. Nayyar Sahab was a loner who defied conventions of society. Though labeled a rebel and a misfit, Nayyar Sahab was truly a blessing for Indian film music. He left home at the age of 18 to pursue a career in music, and at the age of 60 plus left music and home to live, as Siraji puts it so truly, alone but not lonely. Be it romance, tease, guilt, tears or parting, Nayyar Sahab forte was giving a worthy song that brought the story alive in magnificent renaissance of the required emotion, pitch and tenor. Is it not too surprising as his first name, Onkar Prasad Nayyar, originated from most sacred sounds of our universe? Om. Om, Onkar Prasad Nayyar. जिसके नाम में ही ओम है, तभी तो उसका संगीत दुनिया के कोने कोने में हर संगीत प्रेमी के दिल में धड़क रहा है. To commemorate the Master's 95th birthday anniversary on January 16th, and with this fourth episode as grand finale, we graciously get to conclude our musical series with one and only the unforgettable O.P. Nayyar. दोस्तों, पिछले 6 महीने have been incredible for us. हम सब मिलजुल कर मेहनत करते रहे, लगन के साथ ये काम करते रहे. बस यही कहना चाहते हैं तहे दिल से आपका शुक्रिया. We can't thank our donors and sponsors enough. We hope that you found it worthwhile as well. Let me once again mention that through this entertainment program, we are supporting Mumbai Roti Bank. Let us all thank them for doing an incredible job, especially at this challenging hour. Thank you once again for joining, and your generosity is highly appreciated. Without any further ado, let's begin the show. There is something which even the most die-hard fans of O.P. Nayyar
have difficulty to come to terms with. There are about 20 songs which were recorded but never made it on the screen, basically, but not included in the film. Now, some of these, I would say most of these, were actually picturized but dropped for one reason or the other. Some of the others got the axe from the censor board. And yet, what is even more strange is that many of them became hits. And I remember today, just like the other songs in the film. And in fact, one of them even got a Filmfare Award. Please hear Neeti Gupte present it to you. खुद भी न जानू कहाँ, पग पग चलू बल खाती, खुद भी न जानू कहाँ, कहता है दिल मत वाला, आज अपना है सारा जहाँ, ओहो हो पलवा खुली हवा में महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। चुन चुन बोले मोरे पायल, आजा कहे साजना, चुन चुन बोले मोरे पायल, आजा कहे साजना, आजा गे सारे नजारे सैया भी के तेरे बिना, ओहो पलवा खुली हवा में महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर, पलवा खुली हवा में। Namaskar, I am Shivanandan, Managing Trustee of Roti Bank, Mumbai, and I have also worked as the Director General of Police, Maharashtra, and retired a decade before. At the outset, I thank Mr. Nabeen Das and his colleagues, and also Green Chilies Entertainment USA for having embarked upon entertaining their huge fan following not only in USA but in the entire globe. They have been helping by propagating the name of Roti Bank Mumbai in achieving their goal of mitigating hunger in India. Friends,
particularly during this pandemic. 800 million Indians have been going hungry and the government is doing their best. But institutions like Roti Bank also have helped them in an exemplary way. For example, we have fed 5.6 million people so far during the pandemic times, and earlier 1 million meals more. That means in a short period of 3 years, we have fed about 6.5 million Indians who have been going hungry. So with this, I request all of you to think about the cause and also support. I thank the audience, all the fan following of Mr. Naveen Das and Green Chilies Entertainment for having helped us so far in our journey, and you have been very, very generous to us. The Roti Bank has been doing exceptional work, particularly during pandemic times, because we should have shut shop because of the growing pandemic problem, but we set sails and opened branches in Ahmedabad, Hyderabad, Nagpur, Chennai and Coimbatore, and also Mumbai as its headquarters. We have helped those migrant laborers who went moving on their foot last year to longer destinations covering thousands of kilometers. Thus, please enable us, help us to pursue this cause of mitigating hunger from India and from the globe ultimately. Thank you very much. Friends, it's time to get ready to listen to that memorable song which connects everything and everyone then and now. Presenting a highly talented member of our team, Prashant Shankar, with Jawaniya Ye Mast Mast Bin Piye. जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल के मेहमान, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, कि दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए।
जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दोस्तों, we are betting you do not know all the vocal artists who have massive success in 90s. We have someone special today for you that you probably forgotten. The Maharashtra government facilitated the senior singer with the Gaan Samradhani Lata Mangeshkar Award for her contribution over a period of time. Having the close contacts with prime ministers like Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, she was initially called to sing Itni Shakti, a prayer song composed much before the film. On Republic Day in 1969 and later was invited to perform at a Maharashtra Day celebration in New Delhi. But today, we do not even remember if she still exists. She has more than 500 songs to her credit, with co-singers like Mohammad Rafi, Mukesh and Asha Bhosle. Most of her songs have been in Marathi besides Bhojpuri, Odia, Bengali, Marwadi, Haryanvi, Punjabi, Gujarati and Assamese. But she has also sung in Hindi films for none other than legendary composer O.P. Nayyar Sahib. Dosto, we are delighted to bring none other than Pushpa Pagdade under spotlight in this episode. नमस्ते, मैं पुष्पा पागदरे बोल रही हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप सबों के सामने श्रीमान जनाब O.P. नैयर साहब के बारे में 2 शब्द कहने का अवसर मिला है। मैं GCE वालों की शुक्रगुजार हूँ। वैसे नैयर साहब के बारे में कुछ कहना सूरज के सामने चिराग जलाना जैसा होगा। वो महान संगीतकार थे। संगीत जगत में उनका एक अलग मुकाम था। लोग उन्हें रिदम किंग के नाम से जानते थे। उनके दिए हुए संगीत की तारीफ करने को मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। यही वजह है कि आज भी लोगों के होठों पर उनकी मधुर धुन थिरकती हैं। वो महान थे। एक दिन मेरे बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग चल रही थी, सोंगाड़ा पिक्चर थी और उसमें हारमोनियम पे बाबू सिंह करके आर्टिस्ट हारमोनियम बजाने के लिए थे। मेरा गाना अच्छा हो गया, उनको अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद वो मुझसे मिले, पुष्पा जी आपने बहुत अच्छा गाया है, मैं आपके बारे में नैयर साहब के पास कहूँगा आपकी तारीफ़ का, आप बहुत अच्छा गाती है, उनसे मैं मुलाकात करवा दूँगा। तो मुझे भी खुशी हो गई और मैंने हाँ कर दिया। और एक दिन वो मुझे नैयर साहब के पास लेके गए। नैयर साहब से मुझे मिलवा दिया। नैयर साहब ने मेरी आवाज़ सुनी और मेरी तारीफ की। नैयर साहब ने मुझे कहा आपको खून का बदला खून में गाना है। उसमें 3 लेडीज़ गाने वाले थे, उत्तरा केलकर, वाणी जयराम और मेरा था। हम लोग को बुलाया और ये खबर दे दी और उसी दिन हमको कहा कि भाई फलाने दिन आना है रिहर्सल के लिए। तो मैंने डेट पूछी तो वो डेट में मेरा कहीं दूर जगह प्रोग्राम था और उन्होंने कहा मुझे आप बेटा ऐसा कीजिए कि आप प्रोग्राम करके आइए, मैं अगली पिक्चर में आपको गवाऊंगा। ये सुनकर आप तो क्या कोई भी ना उम्मीद हुआ था। फिर वहाँ से आने के बाद मैं घर पे आके बैठ गई। भगवान ये क्या हो गया, इतना मुझे बड़ा चांस मिला था O.P. नैयर की पिक्चर में और आज एक मेरे प्रोग्राम के लिए वो चला गया। तो मैंने सुना है कि
यहाँ पर माधुरी जोगलेकर जी ने अपना जादू चलाया और आपकी बात बन गई। माधुरी दीदी ने नैयर साहब को कहा कि साहब उन्होंने बहुत सी पिक्चर, मराठी पिक्चर में गाने गाए हैं और वो अच्छी गायिका है। तो साहब ने उनको कहा उनके कोई रिकॉर्ड है तो मुझे सुनवा दो। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी जाके पुष्पा जी को लेके आ जाऊँ, और फिर उनके घर लेके गई और वो गाने नैयर साहब ने सुने, मेरी गज़ल की रिकॉर्ड, मराठी गाने, और मेरे पीठ में थपथपा के मुझे बोले, बेटा तुम सूरत में जाके आओ, तुम्हारा प्रोग्राम करके आओ, और जो मेरे को डेट दी उस दिन मेरे को रिहर्सल को बुलाया। तो ये बताइए कि फिर आगे का सफ़र कैसा रहा, रिहर्सल कैसा हुआ? मैं जाके आई और फिर उनके यहाँ रिहर्सल हम लोग की चालू हो गई, और उसके 2-3 बाद उन्होंने रतन मोहन जी को बुलाया। तो उत्तरा केलकर, वाणी जयराम और मेरी आवाज़ उन लोग ने सुनी। उसके बाद रिहर्सल ख़त्म हो गई और नैयर साहब ने रतन जी को कहा कि क्यों, कैसा लगा ये लड़की लोग का गाना? तो रतन मोहन ने कहा अच्छा लगा, मगर वो जो पुष्पा जी की आवाज़ मुझे कुछ पसंद नहीं आई, मुझे पसंद नहीं आई उनकी आवाज़। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सुनकर नैयर साहब का रिएक्शन क्या हुआ होगा। तो साहब का चेहरा उस दिन देखने लायक था। वो जैसे कह रहे थे, बोले कि उन्होंने उनके तरफ आँख उठा के कहा, क्या कहा आपने? उनकी आवाज़ ठीक नहीं, आप आवाज़ कैसी होनी चाहिए वो समझते, उनकी आवाज़ में क्या है आप जानते हैं क्या? और उन्होंने स्क्रिप्ट उनके सामने फेंक दी कि वो चुप हो गए। और फिर एक दिन रिकॉर्डिंग का मौका आ गया। वो कहते हैं ना कि कुछ भी न कहा और कह भी गए। तो रतन मोहन जी को शायद ये अंदाज़ा हुआ होगा ज़रूर कि वो संगीत के मुतालिक कितना कम जानते। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी और उस दिन गाने को हम लोग महबूब में गए, और जब मेरा टाइम आ गया तो मैं खड़ी हो गई और मैं अंतरा शुरू की। और शुरू करने के बाद क्या हुआ पता नहीं, वो जो रतन मोहन जी थे वो खड़े हो गए। खड़े होके नैयर साहब को कहने लगे, साहब ये आशा जी आई क्या? नैयर साहब उनके तरफ ऐसे देख के कट करके रिकॉर्डिंग कट किया और उनको, रतन मोहन जी को मैं जहाँ गा रही थी वहाँ लेके आए। आपने कहा था कि पुष्पा जी की आवाज़ हमको अच्छी नहीं लगी, वही गा रही है अंतरा। आशा जी तो आशा जी है, मैं उतनी बड़ी नहीं, उनकी आवाज़ तो उनके, मगर पता नहीं उनको कुछ ऐसा लगा तो उन्होंने वहाँ उनको कह दिया था। उसके बाद उनकी अगली फिल्म में भी उन्होंने आपको साइन किया था और उसमें एक गाना था, मुझे याद है कि वो मशहूर हुआ था बहुत, लिखा तो गया था वो बच्चों के लिए, मगर उसका असर जो था वो बड़ों पे ज़्यादा हुआ। कुछ याद आया आपको उसका? जी, नैयर साहब के पास एक पिक्चर आई बीन माँ के बच्चे, उसमें भी मुझे गाने का मौका मिला। उस फिल्म में मैंने 2 सोलो गाने गाए, एक रफ़ी जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया। पुष्पा जी, क्या मैं आपसे ये फरमाइश कर सकता हूँ कि इस गाने का मुखरा ही सुना दें, क्योंकि ये जो गाना है ये कोई सिर्फ गाना नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए एक अच्छा सबक भी है। ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी, मगर उम्र के हिसाब से फिर भी मैं गाऊँगी। बिन माँ के बच्चे। जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का दुख भागे। जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे से दूर दूर दुनिया का दुख भागे। हर एक की ज़िंदगी में कोई न कोई ऐसी बात होती है, कोई न कोई ऐसा हादसा होता है जिसका उसने दूर दूर भी नहीं सोचा होता है। तो कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी बात हुई है जिसका असर आप पे बहुत हुआ? हाँ, मुझे दोपहर के वक्त में ऐसे ही फ़ोन आ गया। हेलो पुष्पा जी, अरे आपको तो लता मंगेशकर अवार्ड मिल गया। भला मुझे कोई लता मंगेशकर अवार्ड मिलेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, सही बात बोल रहा हूँ मैं महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री श्री विनोद तावड़े जी बात कर रहा। तो मुझे उस वक्त याद आ गई। हाँ, एक दिन मैं गांव जा रही थी और उस वक्त में मैंने पेपर लिया था और मैं पेपर नहीं पढ़ सकती, तो घर में जाके मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया। तो लावनी गायिका सुलोचना चौहान को लता मंगेशकर अवार्ड मिल गया। तो मैं माताजी को बता रहे कि सुलोचना चौहान को लता मंगेशकर अवार्ड मिला। तो माताजी भी खुश हो गई। अरे तू क्यों डरती है, तुझे भी मिल जाएगा लता मंगेशकर अवार्ड। तो मैं माताजी को बोल रही, माँ तू कहाँ बात कर रही, मैं कोली समाज के, मुझे लता मंगेशकर अवार्ड मिलेगा, आप क्या सोचती है। तो मैं बोली, माताजी मुझे लता मंगेशकर अवार्ड तो मिलेगा, मगर उस वक्त में तू कहाँ होगी मेरा अवार्ड देखने के लिए। अरे बेटा मैं रहूँगी। और आज मेरे माँ को 107 साल हो गए। आज मेरे माँ ने सुन लिया कि मुझे लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो आज मेरे आँख में आंसू आ गए, इसलिए मैं चुप रही। साहब ये मेरी बात सुनकर वो भी भावुक हो गए। अरे आपकी माँ 107 साल की अभी तक है। मैं बोली हाँ। तो आप ऐसा कीजिए पुष्पा जी कि आपका ये लता मंगेशकर अवार्ड जिस दिन ये फंक्शन होगा तो उस दिन माताजी को भी आप साथ में ले आइए। मैं बोली साहब वो 107 साल की है, वो नहीं आ सकेगी। उन्होंने गाड़ी भेज दी और उनके कैमरेमैन सब वो लेके आए थे। तो उन्होंने माताजी की इंटरव्यू ली। फिर जिस दिन मेरा फंक्शन था लता मंगेशकर अवार्ड, और तावड़े जी ने उस दिन सब पर्दे पे लोगों को दिखाया। मैं GCE की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे नैयर साहब के बारे में सारी बातें कहने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद। पुष्पा जी, हमारे इस शो में वक्त निकालकर आपने जो शिरकत की है, हम उसके बड़े आभारी हैं। दोनों हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। I think this is a fantastic idea and I'd like to congratulate Roti Bank. And as you all know, Roti Bank collects all the excess food or the leftover food that is done during the processing and they donate. A lot of mouths will be fed. A lot of our furry friends will not sleep empty stomach. So I congratulate everybody and I urge you to come ahead and help us out in this effort. Thank you. ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी
डोले हंसी नाच दिया घूम के। दिल का हर एक तार हिला छिड़ने लगी रागिनी, दिल का हर एक तार हिला छिड़ने लगी रागिनी, कजरा भरे नैन लिए बन के चलूं कामिनी। कह दो कोई आज घटा बरसे जरा धूम से, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। You will love this timeless song from Phir Wahi Dil Aaya Hoon, sung today by our singing star Sachi Mukherjee. And yes, please do remember that this song was recorded about 60 years ago. There are some songs which touch your heart the moment you hear them, every single time. We are going to present one such gem. The two Ashas, Asha Parekh and Asha Bhosle, have represented each other several times in many films. But this one is special because this is one of Nair Saab's own personal favorite. तस्वीर है एक अनजाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आँखों से जो उतरी है दिल में।
आँखों से जो उतरी है दिल में। ये हमें मालूम है कि वक्त के बहाव के साथ इंसान पहले बच्चे से जवान होता है और जवान से बूढ़ा हो जाता है, मगर ये देखिए कि इसी इंसान के बनाए हुए कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो बूढ़े नहीं होते और जो हमेशा जिंदा रहते हैं, एक ताज़ा फूल की तरह अपने रंग बिखेरते हैं और खुशबू बिखेरते हैं अपनी तरफ। आज भी इनको सुनिए तो ऐसा लगता है कि वक्त ठहर गया हो और इंसान अब पुराने गलियों में गुम गया हो, और फिर लगता है पीछे से आवाज आई, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। जी हाँ, आज हम आपको यही गाना सुनवाते हैं जो आशा भोसले की आवाज में था, मगर आज नेहा आपके सामने पेश करेंगे। आएगी
Thank you, Siraj ji. दोस्तों, as I always say, like all good things come to an end, this romantic song would be our last song for tonight. But only until our new series comes alive. Stay tuned. दोस्तों, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता. मैं हूं कुलराज. अब मुझे इजाजत दीजिए. Goodbye and good luck. Take care and please enjoy. It would seem like a fairy tale today, but in Shammi Kapoor's film Mujrim, it was not Shammi Kapoor on the poster, but it was O.P. Nayyar there, the music director of that film, not the hero, who was on the pre-release poster and billboards. Such was the impact and such was O.P. Nayyar's fame in those dizzying days that his name, just his name, guaranteed the success of the movie. Now, after that, Shammi Kapoor's career took off. Tumsa Nahi Dekha got him to a place where he went, never looked back after that, right? However, it was in Kashmir Ki Kali where both of them joined together again, and really looking back, both of these people, Shammi Kapoor and O.P. Nayyar, talked about and discussed today the most in relation to this film, Kashmir Ki Kali. No duet created in Bollywood comes even close to it in perfection. You have the orchestration consisting of the sarangi, the sitar, the flute, and the signature violin. And then combined to it is the voice synchronization of Mohammad Rafi and Asha Bhosle. And all that is driven by an amazing rhythm which makes your heart skip a beat or two. And that, lyrics to die for. This evergreen classic is my pick from the film. Enjoy Deewana Hua Badal, sung by Prakar Ghosh and Neeti Gupte. This is the title song of our program for today. ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा
तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।